Morning dear students, how are you? I hope you are fine. Once again welcome in DP class. Today we will discuss the chapter Fundamental Rights for NTSC. Firstly we will know what do you mean by fundamental rights. Fundamental rights mentioned in the constitution and where the fundamental rights mentioned in the constitution and they have given in the constitution. And after that we have discussed about that कि the fundamental rights in our constitution, is listed from which article to which article? Article 12 to 35 contain in part, or in which part it is given in the constitution? Part 3rd. It means the fundamental rights in our constitution is listed from, कहाँ से कौन से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक लिए गए हैं आर्टिकल 12 to 35 or in which part of the constitution? Part 3rd. Why they are called fundamental rights? Because they are considered essential development of the personality of the individual. It means they are essential. Why they are essential? क्यों important है, क्यों mandatory है? For the development of personality of the individuals. And whenever the government tries to violate these fundamental rights, if government is violates, अगर government हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो citizens can go to the courts for the enforcement of these rights. अब आपके मन में क्वेश्चन सारा courts, in which court they can move? Especially in Supreme Court and High Courts. तो यानी कि if we are thinking कि government is violating our fundamental rights, so it means where can we go and where we can approach? In the courts for the enforcement of these rights. कि ये rights जो हमारे fundamental rights है वो तो हमें मिलने ही चाहिए. And citizens can go to the courts for these if the government passes any law or issues any order in violation of them, the same can be declared unconstitutional by the Supreme Court. कोई लगता है कि हमारे मौलिक अधिकारों के कोई विरुद्ध उन्होंने कोई कानून पास किया है तो उनको उन राइट्स को गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकती है. तो इट मीन्स हु इज हैविंग द पावर? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक एंड द हाईएस्ट लॉ ऑफ द कंट्री, यानी कि हु इज द हाईएस्ट एंड लॉ मेकिंग of the country? Constitution. And government cannot make any law that goes against this fundamental law. यानी कि fundamental law के against जाकर government कोई rules regulation या कोई law नहीं बना सकती है. If we are thinking कि some governments are violating our fundamental rights, so where can we approach? In the courts, maybe in Supreme Court or High Court. Now it means the model of fundamental rights, यानी कि वी हैव डॉक्ट्रिन, यानी कि द मॉडल ऑफ फंडामेंटल राइट्स वी हैव टेकन फ्रॉम विच कंट्री? यूएसए. और यूएसए के भी कहाँ से? वहाँ से बिल ऑफ राइट्स. तो ये दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि द मॉडल ऑफ फंडामेंटल वी हैड बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? वी हैव टेकन फ्रॉम विच कंट्री? यूएसए. क्लियर? अभी तक हमने 2 मेन पॉइंट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स इज गिवन इन विच आर्टिकल 12 to 35 इन विच पार्ट? पार्ट 3rd. फंडामेंटल राइट्स वी हैव टेकन फ्रॉम विच कंट्री? USA. Now salient features of fundamental rights, यानी कि what are the features या we can say that the characteristics of fundamental rights. The fundamental right are very detailed and comprehensive, यानी कि डिटेल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं. They have been explained in article 24. मैंने यहाँ पे क्यों लिखा 20? Because they are mentioned in the article 12 to 35. तो 12 to 35 कितने बनेंगे? 24 articles. तो यानी कि fundamental rights को हमने कितने articles में explain किया हुआ है? Approximately 24. or in which article? 12 to 35. These rights are justiciable. Why we are saying these rights are justiciable? It means they are enforceable by the courts. How can we say that they are enforceable by the courts? If these rights are violated, the citizens can move the courts for their enforcement. अगर लगता है कि कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो where we can move? In the court. और कोर्ट में किस चीज के लिए हम जाएंगे? यहाँ पर इन द कोर्ट फॉर देयर इन्फोर्समेंट. इन्फोर्समेंट वाले इनको लागू करवाने के लिए. फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर? कि फंडामेंटल राइट हैव बीन गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया irrespective of his caste, creed, religion, sex or place of birth. There should be no discrimination कि आप तो उस स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको कम मिलेंगे, या आप उस स्टेट से हो
प्राइम मिनिस्टर अगर जिस स्टेट से हैं तो ऐसा नहीं कि वहाँ के स्टेट के लोगों को ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, या प्लेस ऑफ बर्थ कि आपने वहाँ पैदा हुए तो आपको इसलिए कम मिलेंगे, या कलर या सेक्स, रिलीजन कि आप हिंदू रिलीजन में तो आपको कम मिलेंगे, मुस्लिम के तो ज़्यादा मिलेंगे, या मुस्लिम में है तो सिख को कम मिलेंगे। नो, देयर शुड बी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि दे कैन फंडामेंटल राइट हैव बीन गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। That is also very important point. They can be suspended during emergency. हम फंडामेंटल राइट्स को ऐसे ही सस्पेंड नहीं कर सकते, रोक से कब लगा सकते, इसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, ओनली ड्यूरिंग emergency in the country. That questions ask most of the exams. कि when we can suspended the fundamental rights only suspended during national emergency. And parliament enjoys the power to amend का मतलब क्या होता है, इसके अंदर चेंज करना फंडामेंटल राइट। और पार्लियामेंट है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल पार्लियामेंट कैन चेंजेस, आर्टिकल 368 फॉर एग्जाम्पल बाय द 44th अमेंडमेंट, यानी अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1978, the right to property was taken out of the list of fundamental right and made it a legal right. यानी कि बिफोर 1978 राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट, बट अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट वी हैव टेकन आउट फ्रॉम द फंडामेंटल लिस्ट, अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, और इन विच ईयर 1978। अब ये फंडामेंटल राइट से होकर क्या बन गया, ये लीगल राइट। क्लियर? तो नाउ हाउ मैनी अकॉर्डिंग, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, the fundamental rights given in the Constitution of India can be classified into 6 categories. Now we will discuss about the one by one all the 6 fundamental rights. Firstly, we will discuss about the right to equality. We have classified the fundamental rights into 6 categories: right to equality, right to freedom, right against exploitations, right to freedom of religion, right to constitutional remedies, right to cultural and educational rights. Firstly, we will discuss about the right to equality. Equality का meaning क्या है? Equality means all are equal. There should be no discrimination. But on the which basis we shouldn't do the discrimination? First, right to equality given in which article? 14 to 18. That is important. कि right to equality given in which article? From where to where? 14 to 18. Now, firstly, we will see what do mean by the article 14. According to the article 14 means equality before law. It means all are equal in the eyes of law and will be equally protected by law. यानी कि in front of law, यानी कि in the eyes of law, there should be no discrimination. Maybe rich people or poor people, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे आम आदमी हो, सभी के लिए इक्वल होगा लॉ का जो भी प्रोसीजर है वो सेम रहेगा, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, प्रेसिडेंट के लिए भी, इवन कॉमन मैन के लिए भी। तो इट मीन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये कौन से आर्टिकल में दिया जाए? 14 में। इट मीन्स दैट ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉ। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन में ना मनाही है, रोक लगा रखी है, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स, यानी कि किस बेसिस पर हम सिटीजन्स के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, की रेस का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर, कास्ट, सेक्स, मेल एंड फीमेल, प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसा, यानी कि ऑन द बेसिस, ये नहीं कह सकते इस रिलीजन को हम स्पेशल प्रोविजन देंगे या इसको नहीं देंगे। वी शुडंट डू द डिस्क्रिमिनेटेड। ना ही हम रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, ना ही हम कास्ट के बेसिस के डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ना ही सेक्स के लिए कि यू आर द मेल, यू आर फीमेल, भाई आप मेल हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब अच्छी मिलेगी, आप फीमेल हो तो आपको नहीं मिलेगी। नो। प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसा नहीं कि आप एक गोवा में बोर्न हुए हैं तो भी वहाँ पर स्पेशल प्रोविजन है, या आप यहाँ पर यूपी में बोर्न हुए तो आपके लिए स्पेशल प्रोविजन है। नो, ऑल आर इक्वल। यानी कि तो सेकंड के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। According to the Article 16, equality of opportunities in matters of public employment in the government, for the government job, all are applicable. यानी कि all will get the equal opportunities if you are having the talent. But if you are not having the talent, अब आप कहोगे कि मैडम इसमें तो आर्टिकल में दिया कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मैंने 10th भी पास नहीं किया और मैं कहूँगी कि मुझे बीएड के इक्वल
कोई जॉब मिले या टीचिंग लाइन में मुझे पीजीटी मिले या मुझे लेक्चरर बनना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यानी कि क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे हम, पर उसके लिए क्या होना चाहिए, टैलेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अगर मेरे पास भी सेम क्वालिफिकेशन है, दूसरे के पास भी है, तो ऐसा नहीं कि जो रिच पर्सन है, जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है, कोई अदर अच्छे उससे प्रोस्पेरस फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको गवर्नमेंट जॉब जल्दी मिलेगी, नहीं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन फॉर गेटिंग द गवर्नमेंट जॉब। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 17, एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब जो हमारे यहाँ पर छुआछूत की जो प्रथा थी, पहले क्या करते थे, जो वी कैन से दैट जो लोअर कास्ट के जो लोग थे उनके साथ हम भेदभाव करते थे उस समय, इसलिए अब हमने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17, एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि अकॉर्डिंग टू द लॉ अब इसको क्या कर दिया, फॉरबिडन, प्रतिबंध लगा दिया गया। अब अगर इसको हम यूज करते हैं तो क्या माना जाता है, एक ऑफेंस माना जाता है, अपराध माना जाता है, यानी कि हम किसी भी लोअर कास्ट के साथ अब भेदभाव नहीं कर सकते, तो इसलिए एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 18, एबोलिशंस ऑफ टाइटल्स, जैसे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन आवर कंट्री मैनी पीपल गोट द मैनी टाइटल्स, जैसे खान बहादुर खान, जमींदार्स, जी दीज आर द टाइटल्स, बट नाउ दीज टाइटल्स हैव एबोलिशन बस फिनिश एक्सेप्ट दो, पर किन केसेस में हम इन टाइटल्स का यूज कर सकते हैं, स्पेशली इन एकेडमिक और मिलिट्री, जो एकेडमिक पर्पज से जो हमें अवार्ड मिलते हैं हम उनका यूज कर सकते हैं, और जो मिलिट्री के जो टाइटल्स मिले हुए हैं उनका यूज कर सकते हैं, पर जो अदर्स है, बट नाउ डेज एक और ऐड कर दिया गया, जैसे रिसेंटली एन अमेंडमेंट हैज बीन पास, डिस्टिंक्शंस एंड इन स्पोर्ट्स हैज ऑल्सो बीन इंक्लूडेड, अंडर दिस कैटेगरी सचिन तेंदुलकर हैज बीन अवार्डेड भारत रत्न। ठीक है, अबोलिशंस ऑफ टाइटल्स का मतलब जो पुराने समय से जो टाइटल्स चलते आ रहे थे राजा महाराजाओं के, या जो ब्रिटिशर्स ने हमें प्रोवाइड किए थे, उनको हमने टाइटल्स को खत्म कर दिया। अब हम वही टाइटल्स यूज कर सकते, जैसे जो एकेडमिक में जो हमें मिलते हैं, मिलिट्री का जो है हमारे लिए पास में, या हमारा क्या है स्पोर्ट्स में हमें कोई स्पेशल टाइटल मिले उसका हम यूज कर सकते हैं। नाउ सेकंड, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम दैट इज गिवन इन विच आर्टिकल, 19 to 22, 19 to 22 इट इज गिवन इन विच फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। हमने अभी राइट टू इक्वलिटी डिस्कस किया 14 to 18, यानी कि दैट इज गिवन इन विच आर्टिकल, 14 to 18। आई होप यू क्लियर। 14 में क्या दिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 में क्या गया, ऑन द, हम किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। क्लियर। आर्टिकल 16 में क्या कहता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए। आर्टिकल 14 में हमने क्या डिस्कस किया था, एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 18 में हमने क्या डिस्कस किया है, एबोलिशंस ऑफ टाइटल्स। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम, दैट इज गिवन इन विच आर्टिकल्स, 19 to 22। राइट टू फ्रीडम इज ए क्लस्टर ऑफ सेवरल राइट्स, यानी कि मैनी राइट्स आर गिवन, एक ग्रुप है राइट्स का। तो we will discuss according to like this one by one, according to the article 19. Firstly we will discuss the article 19. Article 19 guarantees the following freedom to all the citizens. Article 19 में हमारे citizens को कौन कौन से freedom मिली हुई है, freedom of speech and expression. freedom of speech and expression का मतलब है you can express your ideas and views from one person to another person, यानी कि जो मेरे पास जो views है, ideas है, मैं इजीली एक अपने फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, अपने आइडियाज़ को हम एक्सप्रेस करके बता सकते हैं। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि इन आवर कंट्री वी कैन गैदर एट वन पर्टिकुलर प्लेस बट विद हाउ पीसफुली मैनर एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि हमने ग्रुप बना लिया, साथ में हथियार लेकर चले गए, जिसने बोला उसके साथ मार धाड़ करना शुरू कर दिया। नो, वी कैन गैदर एट वन पर्टिकुलर प्लेस बट विदाउट आर्म्स, यानी कि विदाउट एनी वेपन्स। थर्ड, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, यानी कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल या फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर ओन ऑक्यूपेशन वी कैन मेक एनी एसोसिएशंस एंड यूनियंस। सॉरी, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी कि वी कैन फॉर्म एनी ग्रुप और एसोसिएशंस। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं कि यू बोर्न टू दैट पर्टिकुलर स्टेट तो यू कैन नॉट मूव टू द अदर स्टेट, नो, फ्रीली
यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप अपनी हमारी कंट्री के किसी भी पार्ट में आप इजीली मूव कर सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड, डिसाइड का मतलब क्या होता है लिव, एंड सेटल, सेटल का मतलब रहना वहां पर, इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मूव के साथ साथ और क्या कर सकते हो, अगर आपको जो आपको स्टेट में नहीं मिल रहा है, इफ यू वांट टू मूव टू द अदर स्टेट तो यू कैन मूव, यू कैन गेट द जॉब देयर एंड यू कैन सेटल ऑल्सो, यानी कि आप वहां पर रिसाइड भी कर सकते, रह सकते हो। तो यानी कि फ्रीडम टू रिसाइड या टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। नाउ लास्ट, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, लास्ट क्यों बोल रही मैं, क्योंकि आर्टिकल 19 का लास्ट पॉइंट है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, यानी कि इट इज आवर चॉइस, वी कैन अडोप्ट एनी ऑक्यूपेशन, एनी प्रोफेशंस and trade, we can do any trade, any business, it is our own choice कि which occupations I want to adopt. Government cannot force me कि भी आपको तो यही, it is my choice because I have chosen as a profession teacher, तो ये मेरी choice है, मुझे कोई compel नहीं किया गया कि you have to choose only, no। यानी कि freedom to practice any professions or to carry any occupation, trade and business। तो dear students, in the article 19 we have discussed the 6 freedoms we have discussed, it means but although all the above freedoms can be enjoyed by the citizens, यानी कि हमारे जो citizens है we are enjoying all the freedoms, yet the government can impose certain restriction on these rights in the interest of the independence and integrity of India. Restrictions can also be imposed on these rights on grounds of morality and public order, यानी कि we can enjoy these freedoms but without any harm, बिना विदाउट एनी हार्म या हर्ट टू अदर पर्सन। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब नहीं कि आई विल यूज द अब्यूज लैंग्वेज, नो, ओनली आई एक्सप्रेस माई व्यूज एंड आइडियाज। ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब नहीं कि मुझे भाई आज़ादी मिल गई तो मैं जिसको चाहूँ अब्यूज लैंग्वेज में बात कर सकती हूँ, नो। फ्रीडम टू असेंबल नहीं, गवर्नमेंट ने मुझे तो ऑर्डर दे रखा है कि पीसफुली वी कैन गैदर, तो मेरे को हथियार ले जाने की भी परमिशन है, नो। और ऐसा नहीं कि आप अपनी फ्रीडम का एंजॉय कर सकते हैं पर ये नहीं कि दूसरे से उसको हर्ट हो। नाउ वी विल डिस्कस द आर्टिकल 20। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी एंड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 352 आर्टिकल 19 गेट सस्पेंडेड, यानी कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19 वी आर गेटिंग द 6 फ्रीडम, but during emergency, during the national emergency, according to the which article 352, according to that which articles can be suspended, article 19. Now we will discuss about the article 20. What is the meaning of article 20? यानी कि in the freedom, right to freedom given, guarantees certain protection in respect of convictions of offenses. Convictions in offenses का मतलब अपराधियों को भी सुरक्षा का अधिकार दिया है कि they can offend yourself. How? क्या क्या उनके लिए प्रोविजन किया हुआ है? आर्टिकल 20 क्लोज 1, रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशंस कॉमनली नोन एज पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन कॉमनली नोन एज एग्जाम्पल पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन? इसका मतलब क्या है? जैसे किसी ने कोई क्राइम कर दिया और उसके ऊपर कोई पनिशमेंट लगा, कोई जुर्माना लगा, जैसे आज नाइट में किया उसने, मॉर्निंग तक आते आते वो अगर कानून चेंज हो गया पर हमने उसके ऊपर जितना भी चार्जेस लगा है 10,000 या 20,000 वो जुर्माना उसके ऊपर उतना ही लगा रहेगा। जो न्यू लॉ बना है वो नेक्स्ट टाइम से जो अगला रहेगा उसके ऊपर फॉलो होगा, मतलब जो किया है उसके ऊपर एज इट इज वही फॉलो होगा जो उस समय लगाया गया था फर्स्ट टाइम जो क्राइम किया। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20 क्लोज 2 में क्या है? डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मतलब और पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी कि एक ही क्राइम के लिए हम एक बंदे को 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। जैसे मैंने कोई क्राइम किया उसके लिए मैं जेल जा चुकी हूँ, उसका मेरी पूरी हो चुकी है सजा, पर उसके बावजूद भी फिर आके पुलिस वाले कहेंगे चलो भाई आपने ये क्राइम किया था आपको दोबारा हम जेल में बंद करते हैं, नहीं। इनमें डबल जियोपार्डी का मतलब क्या? और पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी कि एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिल सकती है, 2 बार नहीं देंगे इसके लिए। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 23 में क्या है? क्लोज 3 में कंपल्सन टू गिव सेल्फ इंस्क्रिमिनेटिंग एविडेंस, यानी कि अपना गवाह खुद बनना।
जैसे कई बार पुलिस हमारे ऊपर खुद प्रेशर डाले कि भाई आप चलिए हमारे साथ, जहाँ पे आपने क्राइम किया उस क्राइम स्पॉट पर चलकर अपना गुनाह खुद कबूल कीजिए, तो यानी कि कंपल्सन्स टू गिव सेल्फ, तो ये अपनी इच्छा से अगर हम एक्सेप्ट करना चाहें वो चीज़ अलग है, लेकिन पुलिस कहे कि आप प्रेशर से दबाव देके कि आप खुद करो, कंपल्सन्स टू गिव सेल्फ इंस्क्रिमिनेटिंग एविडेंस, कि आपने जो किया है उसका खुद आप मतलब उसके लिए कहो कि भाई हमने ये वहाँ क्राइम किया है, अपने सबूत खुद इकट्ठा करो, इस चीज़ के लिए हम मना कर सकते हैं। पर अगर हम चाहें कि हम पुलिस को सपोर्ट करें, हमने जो क्राइम किया, हमने गलती की है, उसके ऊपर अगर हम अफसोस करना चाहें तो उस वे में हम उसके लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर अगर हमें कहे कि कंपल्सन ये जरूरी है कि आपको चल के वहाँ एक्सेप्ट ही करना है, ये नहीं है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20। नाउ आर्टिकल 21, नो सिटीजन्स कैन बी डिनाइड हिज लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि हम सभी को, किसी को मना नहीं कि सभी को लाइफ का अधिकार है और प्रॉपर्टी यानी कि लिबर्टी का राइट है प्रॉपरली। Sorry, I have written here property. Here will come liberty. Liberty. These can be denied by only law. यानी कि लाइफ और लिबर्टी हम कब मना कर सकते हैं? ओनली दैट इज ओनली इफ ए सिटीजन हैज वायलेटेड ए लॉ और कमिटेड ए क्राइम, यानी कि अगर किसी इंसान ने, किसी सिटीजन ने वायलेटेड, किसी कानून का उल्लंघन किया है या कोई क्राइम किया है, तब हमारा क्या हो सकता है? नो सिटीजन कैन बी, फिर हमारे लाइफ और लिबर्टी का जो राइट है वो डिनाई हो सकता है। नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड व्हाई ही और शी इज बीइंग अरेस्टेड, यानी कि हम नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड व्हाई ही और शी बी बीइंग अरेस्टेड। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, पुलिस वहां पर जाती है उसको अरेस्ट करने, तो उसको रीजन बताना कि व्हाई इज अरेस्टिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, एंड आफ्टर दैट एंड इफ अरेस्टेड, अगर अरेस्ट कर लिया उसको, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ हरसेल्फ थ्रू ए लॉयर ऑफ हिज और हर ओन चॉइस। अगर उसको गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया, तो पर्सन को राइट है कि अपनी चॉइस से अपना लॉयर कर सकता है, अपने को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। थर्ड, एंड इफ ऑल्सो इफ ए सिटीजन इज अरेस्टेड ही और शी मस्ट बी ब्रोट बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट भी कर लिया है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने कितने घंटे के अंदर पहुंचाना पड़ेगा? ब्रोट मतलब उसके सामने लाना होगा विद इन 24 आवर्स। नाउ द आर्टिकल 21A एडिड आफ्टर दैट इन 2002, दैट इज विच आर्टिकल राइट टू एडुकेशन, ये बाद में ऐड किया गया आर्टिकल 21A। इसका मतलब क्या है? राइट टू एजुकेशन एडिड इन 2002। इन विच ईयर इट वाज एडिड? 2002। और अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट? 86th अमेंडमेंट। अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट? 86th। वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट दैट ऑल्सो। आर्टिकल 21A में पूछ सकते हैं राइट टू एजुकेशन गिवन इन विच आर्टिकल? तो आर्टिकल 21A। और इन विच ईयर इट वाज एडिड? 2002। और अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट? 86th अमेंडमेंट। बट इन फोर्स इन, बट प्रैक्टिकली इसको लागू कब किया गया? इन विच ईयर? 2009 आफ्टर राइट टू एजुकेशन बिल पास। कौन सा बिल पास होने के बाद? राइट टू एजुकेशन। चाइल्ड फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14, इसमें क्या था राइट टू एजुकेशन में? यानी कि दो चिल्ड्रन गोट द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, जो 6 से 14 ईयर्स के हो चुके, हैज द राइट टू रिसीव एजुकेशन। ओके, उनको मौलिक यानी कि मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जिनकी एज क्या है? 6 to 14 ईयर्स। नाउ आर्टिकल 22, all these rights are given to the citizens to ensure that the government cannot oppress them, यानी कि जितने भी हमें राइट्स दिए गए हैं ये, तो all these rights are given to the citizens to ensure that the government cannot oppress them unjustly or taken away their liberty। ऐसे ही मतलब गवर्नमेंट मन चाहे ये नहीं कि आपसे आपकी लिबर्टी, आपकी फ्रीडम आपसे छीन ली जाएगी। नो, when government can take, it ensures that however these safeguards are not available to those citizens who are arrested under preventive detention। ये उनके लिए नहीं है जो किसके अंडर अरेस्ट किए गए हैं? preventive detention। what is the meaning of preventive detention? if a person is seen to be threat to law और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, अगर कोई लगता है कि कानून के साथ छेड़खानी कर रहा है, उसको डरा धमका रहा है या देश की यूनिटी के साथ अहित कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो द गवर्नमेंट डिटेन सच पर्सन्स टू प्रिवेंट एनी डैमेज। तो गवर्नमेंट उसको इसके रोक सकती है कि आप इस अपने लिबर्टी का मिसयूज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। अदरवाइज ऑल विल एंजॉय देयर लिबर्टी। किनसे ली जा सकती है? जो अरेस्टेड हुए हैं, किसके अंदर? स्पेशली मतलब दो सिटीजन हु आर अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव
detention. So dear students, we have discussed the right to freedom according given in which article 19 to 22. We have discussed article 19 में 6 freedom we have enjoyed, and after that during the national emergency according to the article 352 article 19 gets suspended. After that we have discussed article 20 3 दिए हुए हमारे, अगर हमने कोई क्राइम किया है उसके लिए जो भी हमारे पर पनिशमेंट लगा है, जो भी जुर्माना हुआ है वो ही रहेगा चाहिए, नेक्स्ट डे अगर चेंज होता है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन लागू नहीं होगा. सेकंड में हमने क्या, उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन. सेकंड क्या था, आर्टिकल 20 क्लोज सेकंड में डबल जियोपैडी. जियोपैडी मतलब एक ही उसके लिए अपराध के लिए हमें 2 बार सजा नहीं मिल सकती है. थर्ड हमने क्या था, आर्टिकल 20 क्लोज थर्ड में कंपल्सन्स टू गिव सेल्फ इंस्क्रिमिनेटिंग एविडेंस, कि हम अपने ही जबरदस्ती, पुलिस हमें कहे कि आप अपने ही खुद गवाह बन जाओ, खुद ही अपने सबूत इकट्ठा करो, उसके लिए हमें कंपेल नहीं कर सकती. आर्टिकल 21 में नो सिटीजन्स कैन बी डिनाइड हिज लाइफ एंड लिबर्टी, ऑल विल एंजॉय देयर लाइफ एंड लिबर्टी. Article 21A added in which year, 2002, according to which amendment, 86th amendment, but practically it was in force in which year, 2009, after the right to education bill passed, and according to this act, who will receive the education, those who got the age of 6 to 14 years. According to the article 22, all these rights are given to the citizens to ensure that the government cannot oppress them unjustly or take away their liberty. It means these safeguards are not available to those citizens who are arrested under preventive detention. So I have written here what is the definition of preventive detention. So dear students, we have discussed about the right to equality, right to freedom. Now we will discuss about the right against exploitation. The third fundamental right, right against exploitation. That is given in which article? Article 23 and 24. According to the article 23rd, prohibition of trafficking in human beings and prohibition of forced labor, या we can say that beggar. According to the article 23 prohibits of traffic in human beings. It means buying and selling of human beings. Human beings means men, women and children for immoral purpose. Immoral purpose का मतलब क्या होता है, गलत कामों के लिए. जैसे विमेंस को हम गलत कामों के लिए खरीदते और बेचते हैं, फिर उनसे गलत काम करवाए जाते हैं. ऐसे ही चिल्ड्रन को पकड़ लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, उनसे फिर मतलब क्या करवाते हैं, भीख मंगवाने का काम करते हैं. तो दैट इज टोटली प्रोहिबिटेड. जो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, बाइंग एंड सेलिंग पे टोटली प्रोहिबिशन है. सेकंड है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर और बेगार. बेगार का क्या है, इज इट प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स टू रेंडर सर्विस टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्जेस और नोमिनियल रिम्यूनरेशन. या तो फ्री में सेवा करेगा अपने मास्टर के वहां पे, या एट नोमिनियल रिम्यूनरेशन, या थोड़ी बहुत सैलरी पर काम करेगा. बट दैट इज ऑल्सो टोटली प्रोहिबिटेड. हम अब किसी से फोर्सफुली फ्री में काम नहीं करवा सकते बेगारी. दैट इज टोटली प्रोहिबिटेड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आवर फंडामेंटल राइट्स. क्लियर? अकॉर्डिंग आर्टिकल 23 व्हाट इज गिवन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, एंड सेकेंड प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर और बेगार. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14, यानी कि अंडर द यानी बिलो द एज ऑफ 14 कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टू डू डेंजरस जॉब्स. यानी कि अब उनको जो हजार्डस वर्क होता है, जब फैक्ट्रीज है, माइंस है, तो वहां पर जिनकी एज कितने से कम है, 14 से कम है, उनको हम एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि प्रोहिबिशन, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं रखा जाएगा वहां पर. Now right to freedom of religion, that is given in which article? Article 25 to 28. Our country is also called a secular country. It means we doesn't declare any official religion. Article 25. According to the article 25, freedom of profess, practice and propagate. What is the meaning of practice here? कि freedom to practice religion does not mean that a person can do whatever he wants to do in the name of the religion. For example, one cannot sacrifice animals or human beings. किसके नाम पर नहीं कर सकता? As a part of certain religious rituals. कि भाई ये तो मेरे religious rituals है, मुझे तो अब animals को sacrifice की बलि देनी है, ये human being की बलि. No. In the name of the religions we cannot do these types of work. Second, इन्होंने कहा प्रोफोगेट, यानी कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं. राइट टू प्रोफोगेट वंस रिलीजन डज नॉट मीन दैट ए पर्सन हैज टू राइट कंपल अनदर पर्सन टू कन्वर्ट इनटू हिज रिलीजन बाय मीन्स ऑफ फोर्स,
फ्रॉड और अल्यूरमेंट, हम जबरदस्ती फोर्सफुली अल्यूरमेंट करो, लालच देकर, प्रलोभन देकर कि भी मैं आपको इतने रुपए दूंगा, आप हमारे रिलीजन में आ जाओ। नो, वी कैन, मतलब हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, बट इन द पॉजिटिव वे। आर्टिकल 26 permit every religious denominations manage religious affair. It means every religious group or sect is free to manage its religious affairs. यानी कि हर रिलीजियस ग्रुप को अपने अपने हिसाब से कैसे मैनेज करना है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक दूसरे के काम में आके कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता कि भाई आपको अब ये प्रोग्राम करवाना, अब ये करवाना। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को कैसे मैनेज कर चलते हैं अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 27 नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स। यानी कि हम रिलीजन के नाम पर किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कंपेल नहीं कर सकती हमें कि यू हैव टू पे टैक्स, क्योंकि आपने इस टेम्पल के नाम पे हमें टैक्स दो, आप हमें गुरुद्वारे के नाम से टैक्स दो। नो, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, यानी कि हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते इस चीज के लिए। आर्टिकल 28 नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वी कैन नॉट गिव द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, स्पेशली इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में तो हम दे नहीं सकते, पर जो कॉन्वेंट स्कूल हैं उसमें मोस्टली आपने देखा होगा कि मोस्टली वो अपने क्रिश्चियन रिलीजन को ज्यादा प्रचार करते हैं, कर सकते हैं, पर वो उनको पॉजिटिव वे में करना है, अगर करना भी है तो उसमें। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज गिवन इन आर्टिकल 23 and 24. After that, we have discussed right to freedom of religion, that is given in which article 25 to 28. Now we will discuss about the cultural and educational rights. Now we will discuss the fifth fundamental right, cultural and educational rights, that is given in which article? Article 29 and 30. It means article 29, special provision for the protection of the rights of the minorities. माइनॉरिटीज को हम क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक, जो मतलब कम है। हमारे यहाँ पर कौन सा रिलीजन माइनॉरिटीज में आता है? मोस्ट ऑफ द सभी रिलीजन आते हैं, एक्सेप्शनल केस क्या, हिंदू रिलीजन को छोड़ के। वहां पर टोटल परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है हमारी? 80%, अबो 80%। तो यानी कि स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। एंड व्हाट दे कैन डू माइनॉरिटीज ग्रुप? लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ इट्स ओन हैज द राइट, यानी कि ये अपनी खुद की लैंग्वेज है, जो उनकी स्क्रिप्ट है, ऑफ इट्स ओन हैज द राइट टू कंजर्व, दे कैन प्रोटेक्ट इट एंड डेवलप द सेम। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हम किसी भी सिटीजन को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे किसी भी कलर का हो, चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, हम उसको मना नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। पर इस अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल है स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द, कौन से ग्रुप के लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 30 ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइसेस। ऑल माइनॉरिटी, यानी कि जो भी रिलीजन माइनॉरिटीज में आ रहे हैं, दे कैन ओपन देयर ओन स्कूल, दे कैन रन देयर स्कूल एंड दे कैन एडमिनिस्टर, रन का मतलब एडमिनिस्टर, रन को चला सकते हैं, and they can give special status या special reservation to particular religion। जैसे मुस्लिम ने अपना कोई स्कूल या कॉलेज खोला तो वो अपना ओपन कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, और अपने ही रिलीजन के लोगों के लिए स्पेशल सीट्स रिजर्व कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 30। क्लियर? यानी कि आर्टिकल जो है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मेनली किसके लिए है? जो माइनॉरिटीज ग्रुप है वो अपनी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये है, यानी कि डेवलप कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। द राइट हेल्प्स इन द इन्फोर्समेंट ऑफ द अबोव मेंशन राइट्स, यानी कि जो हमने 5 राइट्स पढ़े हैं उनको दिलवाने के लिए कौन सा राइट हमारी हेल्प करता है? right to constitutional remedies, और that is given in which article? Article 32. This right makes other rights effective. इस rights की वजह से क्या हो रहा है? जो हमारे other rights है, 5 fundamental rights है, वो प्रभावशाली बन गए, effective बन रहे हैं। That's why Dr. B.R. Ambedkar called the right to constitutional remedies। इसको क्या बोला? right to constitutional remedies का क्या बोला? क्या है ये? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर
कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिल और आत्मा का है। और किसके द्वारा वर्ड बोले गए हैं? बी आर अम्बेडकर कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, how can we get these fundamental rights? In case of violation of any of our rights, we can seek remedy from the courts. हमें कहाँ से लागू करवा सकते हैं? अगर कोई हमारे वायलेट्स कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, कहाँ हम अप्रोच कर सकते हैं? जाके कोर्ट में। फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द जुडिशरी हैज आर्म्ड विद द पावर टू इशू द रिट्स। रिट्स का मतलब ही क्या होता है? रेमेडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट्स? रेमेडी। तो यानी कि फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट द जुडिशरी हैज आर्म्ड विद द पावर टू इशू द रिट्स। कौन इशू कर सकता है? जुडिशरी क्या इशू कर सकती है? फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट करवाने के लिए रिट्स। अब ये क्या है जानेंगे। द सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट्स? आर्टिकल 32 और एंड द हाई कोर्ट, यानी कि हम रिट्स कौन से? दोनों ही कोर्ट कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट भी। और सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल 32 और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है, एंड द हाई कोर्ट्स अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल 226 हैव द पावर टू इशू। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स दे कैन इशू? 5 टाइप्स ऑफ रिट्स दे कैन इशू फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि फंडामेंटल, अगर इफ वी आर थिंकिंग कि आवर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटिंग, तो वेयर कैन वी अप्रोच? इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। There is no problem, directly we can approach to the Supreme Court also, but they will ask the questions कि why we have not gone first to High Court, कि हमने पहले हाई कोर्ट में अपील क्यों नहीं की इसके लिए, why we came directly Supreme Court, उसके लिए हमें रिप्लाई देना होगा, नहीं तो हम अदरवाइज किसी भी कोर्ट में हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। Which are the 5 types of writs? First है habeas corpus. What is the meaning of habeas corpus? To have a body. What is the meaning of habeas corpus? To have a body. What is the meaning here? To have a body. This writ may be addressed to an official or a private person who has another person in his custody. अगर कस्टडी में है तो पर्सन को क्या करना होगा? बताना होगा ना उसके लिए कि हमने भी किया है, तो उसको मतलब विद इन 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा कि क्यों हमने इसको अरेस्ट किया है, बताना होगा रीजन। टू हैव ए बॉडी। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? कमांड देना, आदेश देना। What is the meaning of mandamus? Command. It commands the person to whom it is addressed to perform some public or quasi-public legal duty which has been refused to perform and the performance of which cannot be enforced by any other adequate legal remedy. Prohibition का मतलब क्या होता है? मेनली तो मतलब प्रोहिबिट करना, मना कर दे। जैसे हाई कोर्ट कैन गिव ऑर्डर टू लोअर कोर्ट। किसके लिए ऑर्डर दे सकता है? लोअर कोर्ट। अगर देखता है कि हाई कोर्ट देख रहा है कि लोअर कोर्ट कोई सही डिसीजन नहीं ले रहा है या ले लिया है कोई सही नहीं हो पा रहा, तो हाई कोर्ट उसको बंद करने के लिए बोल सकता है कि लोअर कोर्ट इज नॉट टेकिंग द क्विक डायरेक्ट डिसीजन या गुड डिसीजन, तो इसके लिए हाई कोर्ट मना कर सकता है। और सर्टेरियरी का मतलब क्या है? हाई कोर्ट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो लोअर कोर्ट से ले सकता है। फॉर विच पर्पज? फॉर क्विक डिसीजन, ताकि जल्दी डिसीजन हो। कई बार हाई कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट कुछ डिसीजन में टाइम ले रही है, तो उस यानी कि उस केस को कौन ले लेता है अपने पास? हाई कोर्ट, ताकि उस डिसीजन को जल्दी से जल्दी उसके बारे में निर्णय लिया जा सके, यानी कि फॉर द क्विक डिसीजन। क्यू वारंटो का मतलब फॉर व्हाट अथॉरिटी, मतलब आस्किंग द क्वेश्चंस। इसके अंदर क्या होता है? क्यू वारंट मतलब इज प्रोसीडिंग वेयर बाय द कोर्ट इंक्वायर्स इनटू द लीगली ऑफ द क्लेम विच ए पार्टी असेस टू ए पब्लिक ऑफिस एंड टू आउटसेट हिम फ्रॉम इट्स एंजॉयमेंट इफ द क्लेम इज नॉट वेल फाउंडेड। तो डियर स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न मेनली 5: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, क्यू वारंटो। These are the 5 types of writs. These are issued by the Supreme Court and the High Court. Supreme Court according to which article? Article 32, or High Court Article 226. And who is called the heart and the soul of our Constitution? Right to constitutional remedies के बारे में Dr. B. R. Ambedkar, और right to constitutional remedies given in which article? Article 32. So dear students, we have discussed about the today fundamental rights. I hope you clear all the topics, all the doubts. But what will you do for that? Please watch the video carefully. So, and after that what will you do? You will learn all the articles in the proper way.
we have discussed about the mainly 6 fundamental rights, and we have discussed about the right to property also, but it is not a part of our fundamental rights. Now it became a legal right. We have discussed already. And you will learn right to equality given according to which article, 14 to 18, and right to freedom given in which article, 19 to 22. After that we have discovered right against exploitation, article 23 and 24, and right to religion given in which article, 25 to 28. After that, fifth, we have discussed about cultural and educational right, article 29 and 30, or that article, fundamental rights based on the minorities. How can we protect the minorities groups of people's rights? And last but not least, that is the most important fundamental right to constitutional रेमेडीज. दैट्स इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्या बोला, द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. थैंक यू.